हेलो गाइस। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड स्टार्ट किए थे, राइट? इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज हाफ रिएक्शन मेथड। और उसके हमने स्टेप्स पढ़े थे, विच आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, और वन एग्जांपल भी हमने डिस्कस किए थे, राइट? सो आफ्टर दैट we will take some more different examples that are involved in this ion electron method. Okay, so I'll write more examples on it and we will solve this example and we will balance the redox reaction by ion electron method. ठीक है, तो चलिए अब second example हम देखते हैं. We have to balance this redox reaction which is unbalanced by this ion electron method or half reaction method. Okay, write down the example. Write down BiOH taken thrice. BiOH taken thrice plus SnO2 2 minus is giving SnO3 2 minus plus Bi. Okay, this is the main equation we have. Now this is what BiOH taken thrice solid. It is in aqueous phase, it is in aqueous state and it is in solid state. Aqueous means it is in water. Okay, so what is the first step involved in the ion electron method, friends? The first step in the ion electron method is assigning oxidation state and looking over the species which are undergoing oxidation and reduction. तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं ईच एटम को, राइट? उसके बाद देखते हैं कौन सी स्पीसीज है, कौन सा एटम है वो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और which species is showing reduction. Okay, so that we will do in this step. Now first step, in the step first we will write first as it is the unbalanced equation. जो भी redox reaction आपको दी है unbalanced, we will write that unbalanced redox reaction as it is and we will assign oxidation state to each atom. Okay, now in this case what is the oxidation state of bismuth? You can find the oxidation state or you can calculate the oxidation state of bismuth. Here it is going to be +3. Okay, and we know the oxidation state of oxygen, it will be -2, and what is oxidation state of hydrogen? +1, right? अब यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन पे -4 चार्जेस होंगे तो Sn पे +2 होगा, right? +2 - 4 becomes -2. So what is the oxidation state of tin here? +2. What is the oxidation state of oxygen? -2, right? यहाँ पे क्या होगा देखो अब 3 into 2 -6. So +4 - 6 becomes -2. So what is the oxidation state of tin here? +4. Oxygen की oxidation state -2. And here bismuth is in free state or uncombined state. And in uncombined state, what is the oxidation state of element? It is 0. ठीक है? So we have assigned oxidation state in the first step. Firstly, we have written the unbalanced redox equation as it is. After that, we have assigned oxidation state to all the atoms on reactant side as well as on product side. ठीक है? So write down this oxidation state first in step first. ठीक है? So in step first we have assigned the oxidation state now. Now we will see which species is undergoing oxidation and which species undergoing reduction. तो इस इक्वेशन में आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 से -2 ही रहती है, राइट? ऑक्सीजन doesn't change its oxidation state. Now which element are undergoing change in oxidation state? Bismuth. Look at the bismuth. Bismuth has in reactant, what is the oxidation state of bismuth? It is +3. And in the product, what is the oxidation state of bismuth? It is 0. So this is what it is mean by gain of electron. अगर नेगेटिव चार्जेस गेन किए तो बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 हो गई. So that is gain of electron and which is called reduction. So gain of electron here by bismuth, that is what? Reduction. So now we are identifying
which is oxidation and which species is undergoing reduction. Now look at the tin. Here tin, oxidation state of tin is increased from +2 to +4, right? So +2 oxidation state is changed to +4. That is mean by loss of electron and which is called oxidation. So which atom is undergoing oxidation? Tin. And which atom is undergoing reduction? Bismuth. Very simple. Okay. On the basis of oxidation state, we have confirmed that bismuth is undergoing reduction and tin is undergoing oxidation. Okay. So is that simple? ठीक है. तो हमने ये देख लिया स्टेप फर्स्ट में कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल डिवाइड इन स्टेप सेकंड. वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन इनटू टू half equations. This is the main equation that is called redox equation. Reduction plus oxidation. Okay. अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्पेसिस तो तीन है, तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन हम सेपरेट लिखेंगे और रिडक्शन हाफ इक्वेशन हम सेपरेट लिखेंगे, फिर उनको बैलेंस करके फिर उनको ऐड करेंगे. ठीक है. सो स्टेप फर्स्ट, राइट डाउन एज दिस, एज आई हैव शोन. Assign oxidation state. Here assign oxidation state and identify the species which is undergoing oxidation and reduction. That is nothing but the step first. Okay. अब step second देखते हैं दोस्तों हम. Now in step second, so what is this? This is what? तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? Write unbalanced equation. Write unbalanced equation as it is and assign oxidation number or oxidation states to all atoms. ठीक है. तो ये पॉइंट नोट डाउन करके लो. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? We have written the unbalanced equation and assign oxidation states to all the atoms. Okay. So this is what about the step first. Now we'll see step second. Okay. So we will now divide this main equation into two half equations. ठीक है. तो मैं two half equations में इसको डिवाइड कर रहा हूं. देखो यहाँ पे टीन का क्या हो गया दोस्तों? ऑक्सीडेशन. और बिस्मथ का हो गया है रिडक्शन. ओके. सो आई एम राइटिंग two half equations for the main reaction. Now we have identified which atom is undergoing oxidation and which atom is undergoing reduction. So now step second is, what is step second? Divide main equation into two equation halves. Okay. Or you can write now oxidation half equation. Okay. तो मैं पहले क्या करता हूँ? Oxidation half equation लिखता हूँ. SnO3 SnO2 2 minus aqueous, SnO2 2 minus aqueous, it is giving SnO3 2 minus aqueous. ठीक है. ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन. और रिडक्शन हाफ इक्वेशन है मेरे पास BiOH taken thrice solid, right? What is the physical state here? Solid. And it is giving bismuth which is in solid state. So write down this. These are the two equations, two half equations you can write. Oxidation half equation, and this is what? Reduction half equation. तो अब हम क्या करेंगे? सेपरेटली इनको बैलेंस करेंगे और फिर एक बार फिर उनको ऐड करेंगे, और इसीलिए इसको हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड. देखो हाफ रिएक्शन हमने लिखी. टोटल रिएक्शन को क्या किया? पहले असाइन किया ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उस मेन रिएक्शन को हमने दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लिया. सो दिस इज व्हाट? हाफ रिएक्शन मेथड. और उसी को हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. अब हम क्या करते हैं? आयन्स देखते हैं, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं. ठीक है. आयन्स दैट इज चार्जेस और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, और फिर दो हाफ इक्वेशंस को ऐड करके फिर मेन इक्वेशन राइट डाउन करते हैं. दैट विल बी द बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन. ओके. सो
अब हम इनको बैलेंस करते हैं, तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते, देखो यहाँ पे है प्लस व्हाट SnO2, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, यहाँ पे +4 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये दिखाता हूं, देखो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में सिर्फ मैंने, अब ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में सिर्फ मैं टीम की शो करता हूं। ठीक है, यहाँ पे टीम की दिखाता हूं मैं, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन डजंट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बिस्मथ की यहाँ पे है +3 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 से 0 हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं रिडक्शन, और यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टेप 3 में हम देखते हैं, दोनों की हाफ इक्वेशन हमने राइट डाउन कर लिए। अब ऑक्सीजन एटम देखते हैं हम, हाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, यू नो दैट add water molecule to that side which contains less oxygen atom। अब इसमें अगर देखा हमने ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में, तो राइट साइड में 3 ऑक्सीजन और लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, सो लेफ्ट साइड में we have to add 2 water molecules, right? 2 not 2, 1 water molecule, एक वाटर मॉलिक्यूल अगर ऐड कर दिया हमने, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, इट बिकम्स 3 ऑक्सीजन, सो दैट विल बी द बैलेंस फॉर्म। ओके, सो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर ऐड करना होता है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो इन दिस केस वी हैव टू ऐड 3 H2O molecules on right side of the equation। okay, so that is what about the step third। now write down step third, note down this step second first। this is what step second। now I will write step third। अब मैं step third write down कर रहा हूं, देखो दोस्तों, now so in second step हमने क्या किया, फिर लिखता हूं मैं, +2 से क्या हो गया ये +4। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं डिवाइड मेन इक्वेशन। सेकंड स्टेप में क्या किया, डिवाइड मेन इक्वेशन इनटू 2 हाफ इक्वेशंस। ओके, इनटू 2 हाफ इक्वेशंस। अब ये 2 हाफ इक्वेशंस कौन कौन से थे, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशंस। ओके, तो हमने मेन इक्वेशन को 2 इक्वेशंस में डिवाइड कर लिया, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। सो नोट डाउन दिस पॉइंट। सो सेकंड स्टेप में हमने मेन इक्वेशन को डिवाइड कर लिया है 2 हाफ इक्वेशंस में, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द स्टेप सेकंड। नाउ वी विल सी स्टेप थर्ड। सो इन स्टेप थर्ड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो मैं ऑक्सीजन एटम्स को अब बैलेंस करने जा रहा हूं। ऑक्सीजन एटम को हम कैसे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टू दैट साइड व्हिच कंटेन्स लेस ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में यहां पे मैं क्या ऐड करूंगा, 1 water molecule। so step third I am writing here। अब यहां पे मैं 3 H2O molecules राइट साइड में ऐड कर देता हूं। अब ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए, देखो 3 ऑक्सीजन यहां पे, 3 ऑक्सीजन यहां पे राइट साइड। ठीक है, अब इसमें लेफ्ट साइड में मुझे ऐड करना है एक वाटर मॉलिक्यूल, SnO2 2- aqueous प्लस H2O। ठीक है, लिक्विड। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन एटम इन स्टेप थर्ड, बैलेंस ऑक्सीजन एटम by adding water molecule, by adding water molecule H2O molecule on the side having less oxygen atom, having less O atoms।
जिस साइड में ऑक्सीजन एटम्स कम है उस साइड में हम क्या करते हैं, वी ऐड वाटर मॉलिक्यूल. ओके, सो दैट द इक्वेशन गेट बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. अब देखो 2 plus 1 oxygen, that is 3 oxygen. On the right side there are 3 oxygen, and here also there are 3 oxygen on the reactant side and 3 oxygens on the product side. Okay, so this is what step third. Note down the step third. This is step third. Now I am writing step fourth. Okay, अब हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया दोस्तों. अब स्टेप फोर्थ में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के बाद अब क्या इम्बैलेंस हो गया. देखो H2O वाटर मॉलिक्यूल, हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो वाटर मॉलिक्यूल में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन भी है, राइट. तो हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया. आप देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड में कुछ भी नहीं. अब यहाँ पे अगर देखा हमने तो 3 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, लेकिन राइट साइड में 6 हाइड्रोजन है. सो वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स इन द नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो इन स्टेप 4 आई एम बैलेंसिंग hydrogen atoms. Okay, in step 4 I will balance the hydrogen atoms. और हम hydrogen atoms को बैलेंस कैसे करते हैं, by adding H plus on that side which contains less hydrogen atom. ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में ऐड करता हूँ हाइड्रोजन्स. देखो लेफ्ट साइड में है 2H, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 2H plus. ठीक है, 2H plus. ओके, अब यहाँ पे देखो 6 हाइड्रोजन है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 3H plus aqueous. ठीक है, अब देखो दोस्तों दोनों भी इक्वेशन, नाउ इन बोथ द इक्वेशंस ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड. देखो लेफ्ट साइड में 18 है, राइट साइड में 18, ऑक्सीजन है 3, राइट साइड में 3, हाइड्रोजन से 2, राइट साइड में 2, राइट. अब इसमें देखो नंबर ऑफ एटम्स, बिस्मथ 1 1, 3 oxygen and 3 hydrogens plus 3 hydrogens, 6 hydrogens. On the right side there are 6 hydrogen. तो atoms तो बैलेंस हो गए लेकिन चार्जेस बैलेंस नहीं हुए. ठीक है, so in this step what we have balanced, we have balanced the hydrogen atoms. तो step 4 में मैं लिखूंगा balance hydrogen atoms, balance H atoms, balance H atoms by adding H plus on that side having less hydrogen atoms. जिस साइड में हाइड्रोजन एटम्स कम है उस साइड में मैं H plus ऐड कर दूंगा. यहाँ पे H2O थे, लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन थे, तो राइट साइड में मैंने 2H plus ऐड कर दिए. ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड में थे 3 हाइड्रोजन और राइट साइड में 6 हाइड्रोजन, सो यहाँ पे मैंने 3H plus ऐड कर दी. सो स्टेप फोर्थ इज नथिंग बट द बैलेंसिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, राइट. ओके, सो फर्स्ट स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन किया दोस्तों, अनबैलेंस्ड इक्वेशन राइट किया, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन की. सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने मेन इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में राइट डाउन कर लिया, राइट. वी हैव डिवाइडेड द मेन इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशंस. थर्ड स्टेप में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल. फोर्थ स्टेप में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया बाय एडिंग H plus on that side having less hydrogen atoms. ठीक है, अब एटम्स तो बैलेंस हो गए दोस्तों, लेकिन व्हाट अबाउट द चार्जेस. अब चार्जेस तो बैलेंस नहीं है. देखो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 माइनस है और राइट साइड में 2 माइनस और 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस यानी क्या है, कैंसल, जीरो. लेफ्ट साइड में 2 माइनस है तो मुझे राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं यहाँ पे. आ गया समझ में. देखो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे ऐड करते हैं, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन अगर रिएक्शन आपने लिखी तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लेफ्ट साइड में रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स को लिखूंगा और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स को लिखूंगा. वो कैसे हम देखते हैं. देखो नाउ आई एम राइटिंग स्टेप फिफ्थ. Add the number of electrons to balance the charges. To balance the charges, we are adding now electrons. अब देखो इसमें oxidation half equation में, now this is step fifth. What step fifth is about balancing charges. Charges balance करने के लिए मुझे electrons add करने दोस्तों, ठीक है.
अब राइट साइड में मैं इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में ऐड करूंगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा राइट साइड में आते हैं, राइट? ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स कम्स ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, because oxidation is nothing but the loss of electron, and always in the reduction reaction electron come on the left side because reduction is nothing but the gain of electron. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा, यहाँ पे 2 माइनस चार्जेस और 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस कितने होंगे 0। अब लेफ्ट साइड में कितने हैं देखो 2 माइनस चार्जेस है, 2 माइनस चार्जेस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको, इस चार्जेस को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू प्लस 2 प्लस 2 प्लस और 2 माइनस कितने होंगे 0, और यहाँ पे 2 माइनस है, तो यहाँ पे -2 चार्जेस है और राइट साइड में 0 चार्जेस है, तो मुझे राइट साइड में -2 ऐड करने हैं, यानी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं राइट साइड में। ठीक है, सो आई विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट साइड। अब यहाँ पे देखो रिडक्शन हाफ इक्वेशन में राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड में कितने प्लस चार्जेस है 3 प्लस है, तो मुझे कितने ऐड करने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद 3 प्लस और 3 माइनस विल बी कैंसल्ड, और राइट साइड में 0 चार्जेस है, कुछ भी चार्ज नहीं है। ओके, सो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन द टर्म्स ऑफ चार्जेस एंड एटम्स, बट चार्जेस और एटम्स के बारे में तो बैलेंस हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अनइक्वल हो गए, दोनों अगर इक्वेशन ऐड कर दिए तो राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वी हैव टू चूज द फैक्टर नाउ व्हिच विल इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, सो स्टेप 5 में हमने क्या किया, ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट साइड ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ equation and on left side of reduction half equation। ठीक है, रिडक्शन हाफ इक्वेशन में लेफ्ट साइड में और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। Why we have added the electrons? To balance the charges. चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। ठीक है, तो ये हो गई, देखो दोस्तों स्टेप 5th, नोट डाउन द स्टेप 5th। अब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन भी लिखा आपने तो भी चलेगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है, या आपने ऑक्सीडेशन भी लिखा यहाँ पे तो भी चलेगा, और रिडक्शन लिखा था तो भी चलेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन सेपरेटली वी आर राइटिंग एंड रिडक्शन वी आर सेपरेटली राइटिंग। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन बिकम्स रेडॉक्स रिएक्शन। फाइनली हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिला के फिर रेडॉक्स रिएक्शन हम राइट डाउन करेंगे। ओके, तो ये हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए स्टेप 5 में टू बैलेंस द चार्जेस। ओके, नोट डाउन दिस स्टेप। आफ्टर दैट वी आर लुकिंग नाउ एट स्टेप 6th। Now we will see step 6th। अब स्टेप 6 में हमें ऐसा फैक्टर चूज करना है which will equalize the number of electrons on both the sides। अब देखो मैं क्या करता हूं, अब ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं क्या करता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखो इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, इक्वलाइज हो जाएंगे, और हम इनको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब हम दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बिकम कैंसिल आउट व्हेन वी ऐड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशंस। ओके, तो अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ थ्रू आउट इक्वेशन को, क्योंकि सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है मुझे थ्रू आउट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है,
तो ये इक्वेशन फ्रेशली लिखता हूं मैं, देखो 3SnO2 2 माइनस एक्वियस प्लस H2O 3H2O, राइट, 3 से मल्टीप्लाई करना इसलिए H2O लिक्विड, इट इज गिविंग व्हाट 3SnO3 2 minus aqueous plus 6H plus aqueous plus 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और रिडक्शन हाफ इक्वेशन में लिखूंगा, रिडक्शन हाफ इक्वेशन देखो दोस्तों, रिडक्शन हाफ इक्वेशन क्या आएगा मुझे, अगर रिडक्शन हाफ इक्वेशन देखा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, 2 BiOH टेकन थ्राइस, 2 BiOH taken thrice aqueous solid plus 3H plus aqueous, sorry, 2 into 3 means it is 6H plus aqueous plus 2 into 3 6 electrons, and it is giving 2 into bismuth, that is 2 bismuth solid plus 2 into 3 that is 6 H2O, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों। अब देखो, वी हैव चूजन द फैक्टर व्हिच विल इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिडक्शन में, और ऑक्सीडेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट साइड ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, पहले आसाइन ऑक्सीडेशन स्टेट किया हमने और डिवाइड किया मेन इक्वेशन को 2 हाफ इक्वेशन में, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर उसके बाद चार्जेस देखें, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए बैलेंस करने के लिए, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, फिर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के लिए फैक्टर चूज किया और थ्रू आउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अब हम ऐड करते हैं दोनों भी इक्वेशंस, ठीक है। सो नोट डाउन दिस स्टेप, स्टेप 6, चूजिंग फैक्टर, देखो चूजिंग और चूज फैक्टर which equalize number of electrons, number of electrons को इक्वलाइज करने के लिए हमने फैक्टर चूज किया, मैथमेटिकल फैक्टर। तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और रिडक्शन हाफ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके। सो 3 and 2, these are the mathematical factor we have chosen which will equalize the number of electrons. So note down this step also, 6th step. Or just take screenshot, okay. Now I am writing the step, last step, now I am writing, okay. अब हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप राइट डाउन करते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। नाउ ऐड ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन टू कम टू द रेडॉक्स, मेन रेडॉक्स इक्वेशन। रेडॉक्स इक्वेशन के लिए अब हमें रेडॉक्स इक्वेशन, बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन करना था, राइट। What was our target? We have to write the balanced redox half equation. Okay, तो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीड हाफ रिएक्शन मेथड से हमें क्या करना है, रेडॉक्स जो इक्वेशन दिया है हमें अनबैलेंस्ड, उसको बैलेंस करना है। तो हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, फिर उनको बैलेंस करना है सेपरेटली और फिर हम उनको ऐड करेंगे, ओके। सो लास्ट स्टेप नाउ राइटिंग ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दैट इज writing the main equation by adding the both half equations। तो मैं अब क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड ऐड करता हूँ और राइट साइड भी ऐड करता हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में देखो स्पेसिस कौन कौन सी है दोस्तों, 3SnO2 2 minus 3SnO2 2 minus aqueous plus 3H2O liquid, 3H2O liquid, ओके। तो लेफ्ट साइड में इतने ही है, ओके। अब यहां पे लेफ्ट साइड में क्या क्या है देखो दोस्तों, 2 BiOH taken thrice, 2 BiOH taken thrice solid plus 6H plus aqueous, 6H plus aqueous plus 6 electrons, ओके। तो ये लेफ्ट साइड ऐड कर ली। अब हम लिखते हैं राइट साइड, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन यहां पे क्या करता हूं, रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखो आई एम राइटिंग द मेन इक्वेशन। सो राइट साइड में क्या आएगा देखो, इट इज गिविंग द प्रोडक्ट
अब प्रोडक्ट में लिख रहा हूं, राइट साइड में क्या है 3SnO3 2 माइनस 3SnO3 2 माइनस एक्वियस, ठीक है, प्लस 6H प्लस एक्वियस, ओके, और फिर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स और फिर प्लस 2 बिस्मथ सॉलिड प्लस 6H2O लिक्विड. नाउ ऑब्जर्व द मेन इक्वेशन. ओके, सो राइट साइड में हमने क्या किया, राइट साइड में 2 बिस्मथ प्लस 6H2 यहाँ पे ऐड कर दिए, और ये जो थे राइट साइड में 3SnO3 2 माइनस प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर दिए. ठीक है, सो लेफ्ट साइड ऐड किए और हमने राइट साइड ऐड किए इसमें, और मेन इक्वेशन राइट डाउन किया है. तो ये मेन इक्वेशन हो गया अपना. ठीक है, अब हम इनको फिर देखते हैं. फिर मेन इक्वेशन राइट करने के लिए हमने ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हाफ इक्वेशन ऐड कर दी. अब देखो, नाउ ऑब्जर्व द मेन इक्वेशन. अब राइट साइड में जो है और लेफ्ट साइड में जो इक्वल है वो कैंसिल आउट कर देते हैं. राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो कैंसिल हो जाएंगे. फिर लेफ्ट साइड में 6H प्लस है, राइट साइड में 6H प्लस, दैट आल्सो गेट कैंसिल आउट. अब राइट साइड में 6H2 है और लेफ्ट साइड में 3H2. अगर ये प्लस 3H2 राइट साइड में जाते तो क्या होते माइनस 3H2. तो मैं क्या करता हूँ 3H2 यहां से कैंसिल करता हूं और राइट साइड में डायरेक्टली क्या लिखता हूं 3H2O. ठीक है, यहां पे क्या लिखता हूं 3H2, क्योंकि ये 3H2O प्लस राइट साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएंगे. 6H2 माइनस 3H2 बिकम्स 3H2. ओके, अब देखो ये इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, 3SnO2 2 माइनस 3SnO2 2 माइनस aqueous plus 2 BiOH taken thrice solid, okay, giving 3SnO3 2 minus aqueous plus 2 bismuth solid plus 3H2O liquid. ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन, मेन इक्वेशन अपना. ओके, राइट डाउन दिस. So this is what the main equation. Now let us look at the equation whether it is balanced in the terms of atoms as well as charges. अब atoms और charges में ये equation balance है क्या, वो हमें देखना है. ठीक है, so this is what writing the main equation. Step 7th is about the writing the equation, and step 8 is nothing but the looking at the balanced equation and writing that the equation is balanced in terms of atoms and charges. ठीक है, तो ये step 7th हो गया दोस्तों. Write down this. ठीक है, तो ये स्टेप 7 हमने लिखा. अब देखो दोस्तों, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमें पता है एटम्स तो सेम. देखो 13 लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड देयर आर 13. ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर 6 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन. ऑन द राइट साइड 3 ऑक्सीजन प्लस 3 into 3 9, 9 plus 3 12 ऑक्सीजन. बिस्मथ 2 बिस्मथ, ऑन द राइट साइड 2 बिस्मथ. ओके, अब चार्जेस को देखो. चार्जेस अब हाइड्रोजन भी कितने हैं 2 into 3 6 हाइड्रोजन्स. राइट साइड में भी 3 into 2 6 हाइड्रोजन्स. अब चार्जेस देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 into 2 6 माइनस, यहाँ पे 3 into 2 6 माइनस. ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड नंबर ऑफ चार्जेस आर इक्वल, so the equation is balanced in the terms of atoms and charges. So write down the last line. The equation is balanced. The equation is balanced. The equation is balanced in terms of atoms and charges. With respect to atoms and charges. ठीक है, atoms और charges के टर्म में ये इक्वेशन बैलेंस हो गया. This redox equation is balanced in terms of atoms and charges. Very simple. So this is what the first example we have discussed. Today we have discussed first example of this ion electron method, that is half reaction method. Okay,
So hope you have understood the steps involved in the ion electron method, how to apply those steps to unbalanced redox equation to make it balanced. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन, मेन इक्वेशन लिखा by balancing oxidation half equation and reduction half equation and adding them. Okay, we have written the main redox equation. Okay, so अब इसके बाद और एक एग्जांपल हम देखते हैं. ठीक है.